ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਨਾਹਿ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੇ ਅੰਚਲ ਲਾਵੋ, ਬਿਕ ਮਨ ਨਦੀ ਜਾਇ ਤਰਨੀ। ਕੁਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਆ ਐਨੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਓ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੌੜੀ ਤੈ ਪਾਵਸ ਤਿੰਨ ਸਿੰਧ ਧੂਪ ਨਹੀਂ ਛਈਆ, ਤੈ ਉਤਪਤ ਪਰਲੋ ਨਾਹੀ। ਜੀਵਨ ਮਿਰਤ ਨ ਦੁਖ ਸੁਖ ਵਿਆਪੈ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਦੋ ਤੈ ਨਾਹੀ। ਸਹਿਜ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਨਿਰਾਰੀ, ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਡੈ ਜਾਇ ਨ ਮੁਕਾਤੀ। ਹਲਕੀ ਲਗੇ ਨ ਭਾਰੀ ਰਹਾਉ, ਅਰਧ ਉਰਧ ਦੋ ਤੈ ਨਾਹੀ। ਰਾਤ ਦਿਨਸ ਤੈ ਨਾਹੀ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਪਵਨ ਪਾਵਕ ਪੁਨ ਨਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਹਾਂ ਸਮਾਹੀ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਰਹੇ ਨਿਰੰਤਰ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਲਈਐ, ਕਉ ਕਬੀਰ ਬਲ ਜਾਉ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ। ਸੰਗ ਸੰਗਤ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਰਹੇ ਨਿਰੰਤਰ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਲਈਐ। ਕਉ ਕਬੀਰ ਬਲ ਜਾਉ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਰੋਲ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੋਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਸੁਰਤ ਲਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਘੋਰ ਪਾਪ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਓ, ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜੋ ਅਸਲ ਤੱਤ ਹੈ, ਅਸਲ ਰੱਬ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸਲ ਰੱਬਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਆਓ ਪੈਸੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਪਰਚੀ ਕਟਾ ਜਾਓ, ਦਾਨ ਕਰ ਜਾਓ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾ ਜਾਓ। 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਣਿਆ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ
50 ਤੋਂ 55 ਲੱਖ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ 90% ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਅਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੋਲਕ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਥਾ ਹੋਈ? ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਹੈਡ ਰਾਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਏਗਾ? 90% ਰਾਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਗੇ? ਕੀਰਤਨ 99% ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਊਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਛਕਿਆ ਸੀ? ਰਹਿਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕੁਰੈਤ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਡੇ ਹਨ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੇ, ਕਰਨ ਵੀ ਕੀ? ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹਿੰਦੂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਈਰਖਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। 100 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਖੋਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਗਈ, ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਾਇਕ ਅਦਾਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਮਨੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਮਨੀ ਮੇਕਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡੀ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਹਰ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਈਰਖਾ, ਵਿਰੋਧ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ 108, 1008 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੰਤ ਚੰਗੀ ਐਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾਣ, ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਧੀਆ ਘਰ-ਬਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਇਤਿਆਦਿ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਜੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਡਿਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਓ ਮਿਲੋ, ਕੁਝ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਭ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਓ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹਨ, ਕੂਕੇ ਨਾਮ ਧਾਰੀਏ, ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਏ, ਸਤਨਾਮੀਏ, ਸਤ ਕਰਤਾਰੀਏ, ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਰਜਨੀਸ਼ ਹੈ, ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਦੇਹਧਾਰੀ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀ 1% ਵੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਹਿਤ ਕੁਰੈਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਗਰ ਸ਼ਹਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾੜੂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਾੜੀ ਰੱਖੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਅਕਲ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਸਿਆਣੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਰਾਜ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਰਹਿਣ,
सारी उम्र गुलाम। फिर संतां महात्मा नालों भी गए गुजरे हैं। संत महात्मा भी 99.99% सरकारी हैं। ਜਿਹੜੇ 0.01% बचे हैं वो अपनी सोच ही तो सोच सकते हैं, पर देहधारी गुरु अपनी 1.01 पॉइंट भी सोचनी नहीं सोच सकते। जो गवर्नमेंट कहेगी वो करनगे, उसनों अगली सोच भी नहीं, ना अंदरली सोची है। जे अंदरली सोची होवे तो गुरु बन जान, हो ही नहीं सकता। इस तरह संतां दा है, जे अगली सोची होवे तो संत बन जान। 1% भी सोची नहीं, संत नहीं को बनता। ये गल बड़ी जानन वाली आ। तो अगली खेड ही कोई वक्री निराली सूक्ष्म खेड है। 6 अरब दुनिया विचों एक भी नहीं जान सकता, क्योंकि रब दा कहना है कि बंदा शरीर जान ही नहीं सकता। जिन्ना चिर शरीर की सोझी नहीं, रब नहीं जानिया जा सकता, क्योंकि रब शरीर नहीं, परमात्मा है। आत्मा सूक्ष्म है, दिसती नहीं, जानी नहीं जा सकती। अगम है, अपहुंच अगोचर है, ज्ञान इंद्रियों की पहुंच तो परे है। अगाध बोध है, अकल तो बाहरी है। अदृष्ट है, देख नहीं सकते। अलख है, जान नहीं सकते। निरंकार है, उसका आकार ही नहीं। निरंजन है, निरंजन है, अंजन सुरमा कालक माया, वो आत्मा माया तो रहता है। निर्गुण है, माया के तिन्ने गुण उस विच नहीं हैं। शरीर माया का पुतला है, विच होमे भी है। रब कहता है शरीर माया का पुतला, विच होमे दृष्टि पाई। सो माया का पुतला डैड मुर्दा बेअकल बुद्धू है, विच अंदरी होमे। किवें आत्मा नूं लभ लेगा? आत्मा सूक्ष्म है। पिछे लिखा है हर धर्म आपो अपने रब नूं पा सकता है। तुसीं पत्थर की पूजा करते हो तो पत्थर रब तुहानूं मिल सकता है। राम जी कृष्ण की पूजा करते हो, मिल सकते हैं, पर ये आत्मा नहीं हैं, परमात्मा नहीं है। शिव जी ब्रह्मा विष्णु इंद्र नाल मिल सकते हैं, पर यह भी परमात्मा नहीं हैं। ये तो परमात्मा के बनाए 5 भूतक भुलनहार बंदे हैं। ये तो औरतां पिछे तुरे फिरते हैं, कामी हैं। अहलिया पिछे गया इंद्र, ब्रह्मा अपनी कुड़ी तो मौत हो गया। शिव जी कृष्ण ने कोई कुड़ी छड्डी होवे तो दसना। शिव जी का भी अज भी लिंग पूजा जा रहा है। ये रब है? रब ये काम करता है? फिर रब का आकार नहीं, वो शरीर नहीं, काम शरीर नूं पैदा है, पैंदा है, विकारां तो रहत। माँ प्यो भी नहीं उसका, वो 5 भूतक ही नहीं। वो परमात्मा ने 5 भूतक सृष्टि साजी है। जो साजा है ना तो गुरु है ना रब। जो साजा है वो पूजन योग नहीं है। उसने कुदरत बनाई है, कुदरत पूजन योग नहीं है। ये तो साडी दासी है। कोई 5 भूतक पूजन योग नहीं है। कोई है धर्म जो 5 भूतक नूं ना पूजदा होवे? पत्थर कबरां नूं पूजन वाला क्लेम करदा है कि मैं रब नूं क्यों नहीं जान सकदा? खाली आकड़ ही है, अकल नहीं। मूर्तियां नूं पूजदे हो, शेरां वाली, दुर्गा, काली, वैष्णो देवी, ये भी तो 5 भूतक हैं। ये प्रगट हो जा सकदियां हैं, तुहानूं दर्शन दे सकदियां हैं, पर मुक्ति नहीं। दुनियावी पदार्थ दे सकदियां हैं, पर रब नाल नहीं मिला सकदियां। सप नूं पूजदे हो, नाग देवता आ सकता है, लंघ सकता है, पिपल देवता, केला देवता, पानी देवता, लूण देवता, बसंतर देवता, ये सब रब की बनाई क्रिएशन कुदरत है, रब नहीं है। रब एक जोत है, प्रकाश है, नूर है। वो जोत धरती तो आकाश तक है। फिर वो जोत जागत जो है, अनुभवी प्रकाश है। साडी गल नूं समझदा है, साडी गल नूं सुनदा है, अगों बख्शिश करदा है। आलमाइटी पावर है, ही इज द क्रिएटर ऑफ ऑल यूनीवर्स। हुण तुसीं दिखाओ जिसने रब नूं पाया होवे, परमात्मा नूं। रब ने की कीता, की खेड बनाई? अरबां खरबां साल पहलां ये कुदरत नहीं सी जो आपां अज देख रहे हैं। धरती ही नहीं सी, सूरज ही नहीं सी, चंद भी नहीं सी, हवा पानी नहीं सी, आकाश तारे नहीं सन, समुद्र भी नहीं सी, पर रब सी। ये रब ही दस रहा है। जोत सी, जागत जोत, अनुभवी प्रकाश, नूर सी, परमात्मा सी। ये अपने आप तो बने हैं। इस प्रकाश को किसी ने नहीं बनाया, इसका कोई करता नहीं है। ये प्रकाश आप करता है। ये प्रकाश किवें बनया, कदों बनया, क्यों बनया, कद लई बनया, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि बंदा उदों है ही नहीं सी। उस प्रकाश ने अपना नाम भी आप ही रखा। आपां रब, परमात्मा, अल्लाह, राम, रहीम, हरि, नारायण, गॉड आदि कहने आ, पर सचखंड में सिर्फ नरोल वाहिगुरू जपिया जा रहा है। वाहिगुरू 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 उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब किते लिखे ही नहीं। उसने कुदरत साजी जो अज अखां नाल वेख रहे हैं।
उसकी साजी कुदरत ही है। कुदरत में आप बैठा है, उसकी जोत तो धरती तो आकाश तक जल थल मैयल सारे पासियां पसरिया होया है। एक जोत एक ही प्रकाश, वो आप ही करता है, आप ही दाता है। जिसनों पैदा किया है उसनों रोटी रोजी भी दिंदा है, और कोई नहीं। ब्रह्मा शिव जी विष्णु कुछ भी नहीं, अज भी कुछ नहीं। हिंदुओं के बनाए देवते हैं, रब दे बनाए एक बंदे हैं, खिडौने हैं। अब गल करिए, मारदा भी आप है, जन्मदाता भी आप है, मृत्युदाता भी आप है। सारी ताकत उसके अपने हाथ में है। आप सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ है, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਨੂੰ भी ਜਾਣਦਾ है, 6 ਅਰਬ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ भी ਜਾਣਦਾ है। ਕਰਤਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਖਰਬਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ। अपने मन परचावे की खेड बना दी, अपने ही दो रूप बनाए। सृष्टि साजन की सोच रहे, दो पक्ष लिव ते धात, शरीर ते आत्मा, सचखंड ते नरका, चंगा ते गंदा, एक ते दूजा, माया ते सुरत, विषय विकार ते निर्लेप। जीवां की साजना इस सिद्धांत ते कीती। शरीर गंदे तो गंदा विच आ बैठ गया, पवित्र तो पवित्र। सचखंड विच आप गुरु नानक बन के बैठ गया, जो पंज भूतक नहीं, आप है पवित्र तो पवित्र। वो सचखंड का मालक बना दिता, अते आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश कर दिता। अपने बारे सब कुछ ही लिख दिता। दूजे पासे धर्मराज गंदे तो गंदा ते जमदूत उस तो भी गंदा बिठा दिता। ये पंज भूतक नहीं, आप है। सो अपने दो रूप बना लै। ये दोवें रूप सूक्ष्म हैं, आप ही है। तो दोवां दा नाम दरगाह है। एक विच जीव नूं सत्कार मिलता है, दूजे पासे मारा ही मारा, कुट ही कुट, जूना ही जूना, नरक ही नरक। हुण जीव पैदा कर देते, पैदा कर लगे उसनूं पहला औरत के मर्द सोचना नहीं पिया, साज दिते। इत्थे साइंस गलत है। साइंस भी तो बंदा ही सी, सो बंदे की सोच तो बाहर कम है। हवा आदम सप ये भी बंदे की सोच सी। तो बाबे दी लीला बाबा ही जानदा है। जीव जीवात्मा आत्मा मेरे पुत्र छोटे रब, शरीर में जाओ, धरती ते जाओ, धर्म कमाओ, मेरा नाम वाहिगुरू जपो, सरबत दा भला सोचो करो, मनुखता की सेवा करो, निमरता के धारनी रहो, संगत करो, मेरे असूल पढ़ो, तुर की बाणी पढ़ो, मैं ही लिखी है। जीवां दे भले लई अमृत छको, मैं ही छकावांगा। रहत रखनी कुरैत ना करनी, हौली हौली शरीर नूं भुल्लो, भुलदे जाओ, सुरती लाउंदे जाओ। माया तुहाडी दासी है, सेवका है, मैं तुहाडी सेवा लई लक्ष्मी बनाई है। तो तुसी इसकी पूजा कर रहे हो, पूजा मेरी करो। सारी कुदरत जीव तेरी दासी बनाई है, रब बन जाओ, धरती ते रब बन के रही। धर्मराज ने कहा सारी सृष्टि का ख्याल रखना है, सूक्ष्म लई ये ख्याल रखना है, कोई औखा नहीं, बहुत सौखा है। उत्तों दुनिया गेंद की तरह नजर आती है। 6 अरब दुनिया का धर्मराज ही ख्याल रखता है। घट्टो घट्ट 40 अरब जमदूत होंगे उसको, वो भी पंज भूतक नहीं, सूक्ष्म हैं, फिर बहुत ताकतवर हैं। बंदा एक उन्हां सामने पेन वर्गा है, 2 उंगलों नाल चुक के मारदा है। तो जम्मण तो पहला ही दो जमदूत सिर ते आ खड़े होंदे हन। हर बंदे नाल 2 जमदूत खड़े हैं, कोई बच नहीं सकता। सूक्ष्म हैं, कोई देख नहीं सकता। हिंदू इसनूं चित्रगुप्त आखदे हैं, वो भी ठीक हैं, गुप्त चित्र बनाते रहते हैं। जमदूत काम ही यही करते हैं, बहुत विकारी हैं। इन्हां दा काम ही यह है कि जीव नूं भुला ही देना है कि तू रब है। वो सारे शरीर पक्षी हैं। शरीर बहुत गंदा है, अति गंदा है। देखो शरीर की है, शरीर दे नाल इतनी फोर्स है जीव नूं मारन लई। उपरला पहला पैरा नंबर 7 पढ़ो, जीव नूं की कहा। हुण देखो जी शरीर नूं की कहा। शरीर जीव थले धर्म, धरती दे धर्म कमाउण जा रहा, मैनूं लभण जा रहा, तो ते मेरे तरह जीवन रखेगा, दुनिया की खलकत की सेवा करेगा, नाम जपेगा, सुरती लाएगा, तू ये काम कर नहीं देने। मन ते माया लक्ष्मी नूं इसकी मदद करनी, मन ते माया लक्ष्मी तू इसकी मदद करनी। महाराज साडे कोल की ताकत है कि असीं तेरे पुत्र दे नेड़े भी जा सकीए, मर जावांगे महाराज। नहीं मैं समझाउंदा, रब बोलिया ये गल्लां मैनूं पसंद नहीं। जीव नूं भुलाउण दी कोशिश करो कि रब है, जोर लाओ कि रब नहीं है, शरीर है, पूरी कोशिश करो। जीव तो क्रैत कराओ, कुड़ियां मगर कमाओ, अपने अंदर काम पैदा करो, ਵਧਾਓ, पराई स्त्री का मोह ਵਧਾਓ। एक बारी भी जे पराई स्त्री भोग कर गया
मैनू भुल जाएगा। बस इसे चक्कर में रखो, ना मन्ने सिर नंगा रखो। जो सिर नंगा रखेगा मैनू भुल जाएगा। ਇਹਦਾ सिर नंगा रखो क्योंकि सिर विच मैं हाँ। इत्थे ही आनंद सुख लभो। हज़ारां कुड़ियां पराइयां इस्त्रियां दे मोह विच पा दिओ, घुमदा फिरे। मैनू एक काम बिल्कुल पसंद नहीं। जिहड़ा जीव एक काम करेगा अपने आप मैनू भुल जाएगा। माया जीव नू भटका के अपने चक्कर विच, जीव नू भटका दे अपने चक्कर विच। तो इन्नी सोहनी बन के आप अपने आप नू पेश कर कि तेरी ही झोली विच डिग्या रहे। जदों बोले यही बोले, माया तो बगैर गुजारा नहीं, माया तो बगैर गुजारा हो नहीं सकता। माया तो बगैर की गुजारा है? माया तो बगैर गुजारा ही नहीं। माया तो बगैर की कदर है? अज माया तो बगैर समाज पुछदा नहीं। सोसाइटी में बैठन उठन दी माया नाल है। तो माया तो बगैर केड़ा काम हुंदा है? माया तो बगैर कोई रोटी नहीं पुछदा। माया तो बगैर टब्बर भुखा मारना है, बच्चे नहीं पढ़ाने। माया तो बगैर बच्चों का भी भविख ही है। माया तो बगैर कोई स्टेटस ही नहीं, कोई गल करने तैयार नहीं। माया तो बगैर कोई भिख्या नहीं दिंदा। जीव नूं मोह है, भुला दे कि तू जीव की दासी है। वड्डी लैन ला दे, चारा खा जाए, कमीशन खा जाए, देश बेच देवे, हर काम में माया मंगे, इंसानियत तो गिरा दे, निमरता ते मिठास रहन ही न दे, सेवा भावना खत्म कर दे, अपनी ड्यूटी ते कोई कुर्सी ते बैठे ही ना, बस सारे काम बस तेरे नाल ही हों, माया तेरा ही राज हो जाए। तो जीव कोलों मन नशा करा, शराब पीवे, तमाकू, सिगरट, बीड़ा, सिगार, समैक, हेरोइन, और कोई नशा करा दे, मैनू 110% भुल जाएगा। शरीर विच मोया जाएगा, अपने आप गंदगी दे खूह विच डिग पेगा, हुण उठ नहीं सकेगा। उठा खवा दे, चस्कियां विच पा दे, ऐश कर लई होटलों में लै जा। शरीर माया दी मन दी मदद नाल जीव नूं सोहना बनने दे चक्कर च पा दे। तू ही सोहना है, तेरे वर्गा सोहना होर कोई नहीं, सारे तैनू ही देखते हैं। दाढ़ी आ गई, कटा दे, छोटी छोटी उम्र लगेगी, जवान जवान लगेगा, सिर दे केस बना दे, सोहना लगेगा, सिर तो पैरों तक रोमां दी, केसां दी, वालां दी कटिंग करा दे, शेव करा दे, ट्रिम करा दे, सोहने सुपन के चक्कर विच ही घुमा दे, भुल जाएगा मैनू ये कटिंग बिल्कुल पसंद नहीं। वड्डा हो गया तो दाढ़ी काली करा दे, ब्यूटी पार्लर भेज जीव नूं, जीव दा सिर नंगा रख, फिर ध्यान नाल विचारो। जीव वड्डी लेगा, माया पिछे झूठ मारेगा, माया जोड़ेगा, स्विट्जरलैंड भेजेगा, कपला करेगा, टपला मारेगा, कमीशन खाएगा, इंसानियत तो गिर जाएगा, मैनू भुल जाएगा। जे जीव जीवन पक्षों गिर गया, मैनू कदी नहीं याद कर सकता, भुल जाएगा कि मैं रब हाँ। जे कोई भी नशा करना पिया, मैनू भुल जाएगा, भगती नहीं कर सकेगा, चस्के मैनू पसंद नहीं। सिर तो लैके पैरों तक कितों भी रोमां दी, केसां दी, वालां दी बेदबी करेगा, सिर नंगा रखेगा, मैनू भुल जाएगा। हुण 6 अरब दुनिया विचों कोई बंदा दिखाओ जो उतले चारे कम्मां विचों एक भी ना करदा होवे ते रब नूं जाणदा होवे। चैलेंज है सारी दुनिया नूं। उत्ते लिखिया है ना कि ये सारे पखंडी हैं, इन्हां नूं रहत को रहत दी पता ही नहीं। सो अगली गल नोट करो रब दी, मैं हर जीव नूं इंसानियत नाल भरपूर, दैवी गुणां नाल भरपूर, अपने वर्गा इंसान देखना चाहुंदा। मेरी इंसानियत शुरू ही इत्थों हुंदी है कि चारे गलत काम ना करे। ये मेरिया बजर कुरैतां हन, मैं ये कुरैतां नूं बिल्कुल पसंद नहीं करता। जो करेगा वो मेरिया नज़रां विच इंसान नहीं, मैं उसनूं अपनी दरगाह नहीं बुलावांगा। ये सारा पक्ष शरीर का है, धात का है, ये सारा पक्ष धर्मराज का है, इंसानियत तो गिरावट का है। कोई भी जीव जो उतली कुरैत करेगा धर्मराज को जाएगा, नरकों में जाएगा, 84 लाख जूना च पएगा, उसनों कोई बचा नहीं सकता। बाद में बहुत पछताएगा। हर जीव की मैं उस मनुखा जन्म विच अरदास सुनांगा ते काम भी पूरा करांगा। मेरी बनाई हुई शरीर की बनतर इस तरह है, शरीर एक गुफा की न्याई है, पिछले सारे संस्कार तेरे नाल आउणगे, वो है तेरा मन। शरीर में माया का पुतला बनाया है, विच अंदरी होमे पाई है, माया का मौत बहुत पाया है, ईर्खा नाल भरिया पिया है, विकारां दी अग नाल सड़दा रहेगा, काम क्रोध लोभ मोह साड़ देंगे, होमे मेरे तो वखरा कर रखेगी, काम भुला ही देगा, दुबदा पाई है, तेर मेर शरीका निंदा चुगली है, करी जाई सुनी जाई, चिंता फिक्र का घर है। तो बीमारी दुख सुख सब अंदर ही हैं। शरीर के 9 दरवाजे हैं, 9वां
ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਹੈ। 9 ਦੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚਸਕਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋਛਿਆਂ ਰਸਾਂ ਨੇ, ਠੱਗ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਠੱਗ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹਨ। 2 ਅੱਖਾਂ ਹੈ, 2 ਨੱਕ ਹੈ, 2 ਨਾਸਾਂ ਹੈ, 1 ਮੂੰਹ, ਗੁੱਦਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਗੇ। ਇਹ ਠੱਗ ਨੇ ਮੂਸੇ। ਮੈਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਪੂਰੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਸਰੀਰ ਹਾਂ, 5 ਭੂਤਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਾਂ, ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲਈਦਾ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜੋਤ ਲਈ, ਆਤਮਾ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਆਕਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਰੱਖ। ਉਸੇ ਆਕਾਰ ਵਰਗਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਤ ਸੀ, ਤੋ ਜੋਤ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੂੰ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਤ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਣਿਆ। ਉਤਲੀ ਦੁਨੀਆ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਝੂਠੀ ਤੇ ਆਰਜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸਥੂਲ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਉਤਲੀ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਥੱਲੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਸਰੀਰ ਤੂੰ ਅਤੀ ਗੰਦਾ, 9 ਦੁਆਰ ਅਤੀ ਗੰਦੇ, ਮਨ ਅਤੀ ਗੰਦਾ, ਮਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਜੀਵ ਤੂੰ ਇਸੇ ਗੰਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ 9 ਦੁਆਰੇ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 3 ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਨਿਰਮੋਹ ਹੋ ਕੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਨਿਜ ਘਰ ਹੈ, ਥਿਰ ਘਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਇਆ, ਸਰੀਰ, ਮਨ, ਜਮਦੂਤ, ਧਰਮਰਾਜ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਇਆ, ਸਰੀਰ, ਮਨ, ਜਮਦੂਤ, ਧਰਮਰਾਜ ਬਣਾਏ। ਤੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੀ ਦਸਮ ਦੁਆਰ 'ਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹਾਂ, 5 ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹਾਂ। ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅਸੂਲ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਲਈ, ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਲਈ ਹਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਗੁਰੂ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅਸੂਲ ਹਨ, ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਈ ਹਨ, 6 ਅਰਬ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ। ਖੇਡ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਸੋਚ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਥੂਲ ਹੈ, 100 ਕਿਲੋ ਤੇਰਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਐਡਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? 9 ਦੁਆਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਗੇਗਾ? ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇਗਾ? ਦੁਬਦਾ, ਸ਼ਰੀਕਾ, ਤੇਰ ਮੇਰ, ਚਿੰਤਾ, ਫਿਕਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 239 ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਇਆ। ਰੱਬ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਉਸਦਾ ਹੀ ਸੁਰਗਨ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਣ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਣਹਾਰ ਹਾਂ। ਅਰਬਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਖਰਬਾਂ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀਵ ਬਣਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਗਈ। ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 1469 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖੇਡ ਸੀ? ਬੰਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੁਰਤੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਚਰਨ ਪੌਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਜੀਵ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਗੋਂ ਚਰਨ ਪੌਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੁਰਦੀ ਆਈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨਾ ਜੀ, ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ।
कई बारी खत्म की। जदों पहला सिची साजी तो सारे साबत सूरत बंदे गुरमुख साजे, सारे भगती करते सन, सारे चंगे सुभाव के सन, बड़े मिलवर्तन वाले सन, बड़े प्यार वाले सन, बहुत सेवा भावना वाले सन। इस युग नूं समय का नाम दिता सतयुग। हौली हौली समा बदलता गया, ईर्खा आउंदी गई, लड़ाई होंदी गई, धर्म 75% रह गया, एक लत टुट गई, भाव 25% अधर्मी हो गए। ये रब दे हुक्म विच ही होया। 25% कुरैता करन लग पए, पराई स्त्री, रोमां दी बेदबी, नशा। इस युग का नाम पै गया त्रेता। सारे त्रेता करके जानन लग पे। फिर हौली हौली समा होर बदलता शुरू हो गया। 50% गुरमुख रह गए, 50 मनमुख हो गए, कुरैत ज्यादा होने लग पई, लड़ाइयां वध गईयां। 50% हिंदू ही हो गए, ईर्खा वधी, राजियां दी आपस विच लड़ाइयां वधियां, काम वधिया, नशे का सेवन वधिया, सुहप्पण वधिया, नाइयां दी दुकानां होर खुलण लग पईयां जो साजुग विच नहीं हतन हुंदियां। जीव नूं मौका दिता जा रहा, अजे भी समझ आ पर नहीं। कौन मन ही हो गया, कामी हो गया, नशा करना पिया, अगला जन्म ही हिंदुआं दे घर भेज दिता। सड़दा रही, औरतां भोगदा रही, माया नूं पूजी जाई, नशे करदा जाई, रोज सेव करी, धर्मराज कोल पहुंच। ये समा दुआपर बनिया। होर समा बदल गया, 75% मनमुख हो गए, 25% ही गुरमुख, काम वधिया, साइंस ने तरक्की की, रब हौली हौली भुलदा ही गया, करैतां वध गईयां, पढ़ाई बहुत वध गई, शरीर तक ही सीमित रह गए, अंदरले पक्ष नूं भुलना शुरू हो गए। 90% मनमुख हो गए, इंसानियत रही ना, सारे करैतां करन लग पए, वड्डी खौर हो गए, काम में बहुत वाधा हो गया, रोमां दी बेदबी सारे ही करन लग पए, गुरसिੱਖੀ खत्म हुंदी गई, ब्यूटी पार्लर खुलते गए, सारे ही ऐश प्रस्ती विच पै गए। इस युग का नाम पै गया घोर कल युग। समा आ गया, सारे कुरैत करना पै, संगत हुंदी ही नहीं सी, नाम कोई जपदा ही नहीं सी। रब ने धरती पानी विच डोब दिती, धरती का नां निशान न रहा, जीव का नां निशान न रहा, पिछले इतिहास का नां निशान न रहा। हज़ारां साल फिर घुप घनेरा ही रहा, फिर धरती पैदा की। तो रब लई ये मामूली गल है, ये उसके चोचले हैं। मन परचावे की खेड है। कौन है जीव, कौन है शरीर, तू कौन है, कित्थों आया है, कित्थे जाना है, गुजरात भुचाल आया, किन्ने मरे, रब नूं की फर्क पिया। इस तरह बहुत सारी धरती सृष्टि खत्म हुई, फिर वाहिगुरू ने साह दिती। हुण तुसीं आप देखो, उही समा फिर आ रहा है। 90% कामी, शायद 99% ही ये पराई स्त्री की कुरैत हो रही है, 99% ही रोमां की बेदबी हो रही है, नाइयां दी दुकानां, ब्यूटी पार्लर, होटलों में ऐश प्रस्ती, 99% ही नशा करने वाले। फिर इहो जी सृष्टि नूं रब पसंद नहीं करता, आप ही ढाउंदा है, आप ही साजदा है, उसनूं कोई फर्क नहीं पैंदा, उसनूं कोई अफसोस नहीं हुंदा, वो रोंदा नहीं, मायाधारी नहीं, वो निर्लेप है, अलेपत है। इस तरह इस समय नूं 4 भागां विच वंडिया गया। सारे ही चंगे, सारे ही गुरमुख, सारे ही नाम जपण वाले, सारे ही रब दा रूप सतयुग। समा बदल गया, 25% मनमुख हो गए, कुरैत होने लग पई, मनुखता वधी, मनमुखता वधी, त्रेता। फिर कुरैत ज्यादा वधी, 50% मनमुख बन गए, नशे वध गए, नाम सिमरन घट गया। द्वापर 75 तो 99% तक मनमुख, नाम कोई जपदा ही नहीं, कुरैत ही कुरैत, वड्डी है वड्डी कलयुग। इस तरह हर युग विच बाबा आउंदा रहा, दुनिया नूं सच्चा राह दसदा रहा, सौखा राह दसदा रहा। काफ़ी उसके चरनी लग के तर गए, इंसानियत तार के, दैवी गुण तार के तर गए। कई उसकी रीसे देहधारी गुरु बन गए। उन्हें सारी सृष्टि डोब दी, क्योंकि उन्होंने अगली दुनिया का ज्ञान नहीं सी। सदैवी दुनिया अगे है, ये आरजी है। उन्होंने ठगां नूं अगे करोड़ों साल का भुगतान पै गया। इत्थे 2-4 सालों के सुखा ने उन्होंने जिंदगी बर्बाद करती। बाबा आप आया, जो बाबे कोल आया, सब तो पहला बाबे ने अमृत तैयार किया, गुरसिक्खां नूं दिता। बाबा नानक करता है, समर्थ है, पर सिर्फ सिख कौम का नहीं, सारे जीवां का साझा रब है, गुरु है। जिहड़ा सिख कुरैत करेगा वो बच जाएगा। कित्थे लिखिया? कि सिख शराब नहीं पींदे, कि सिख नशा नहीं करते, कि सिख पराई स्त्री भोगण के शौकीन नहीं, कि सिख रोमां की बेदबी नहीं करते, कि माया के भुखे नहीं हैं, कि उन्हां अंदर इंसानियत है, कि दैवी गुण हैं, कि सिख रब वर्गे हैं, कि बाबे नानक वर्गे हैं। फिर क्यों नहीं नरकां में जाणगे? कौन बचाएगा? बाबा सिखां दा गुरु ही नहीं। असीं इसनूं अपना कही जा रहे हैं, ये साडी बेवकूफ़ी है, अज्ञानता है, हनेरा पक्ष है। बाबा अज दे सिखां नूं देख के भी राजी नहीं। तो गल समझण दी है, बाबा रब है, बाबा सारे दा साझा है। बाबे ने रब दे असूल दसे हैं, जिस नूं चंगे लगे
वो बाबे का गुरसिख बनेगा। गुरु बाबे दे वो सिखियार्थी शिष्य स्टूडेंट चेले बननगे। फिर सिख सिख बाबे का नहीं। हिंदुओं तो भी भैड़े हैं, मुसलमानों तो भी भैड़े, गोरियां तो भी भैड़े, सारिया तो भैड़े गंदे कमीने हरामखोर किरत करन बाबे दे। तो जेड़ा अमृतधारी नहीं वो बाबे का नहीं। बाबे ने जीव नूं अपने वर्गा बनाना है तो सचखंड जा सकता है। सचखंड वसे निरंकार, बंदे उत्थे नहीं हैं, सारे निरंकार ही हैं, जीव भी निरंकार ही हैं। शरीर ने भुलेखा पा दिता है, वो भुलेखा ही बाबा दूर करना आया सी। बस ये भुलेखा होर कोई दूर कर नहीं सकता, क्योंकि खेड़ सूक्ष्म है, अस्थूल नहीं है। बंदिया पंज भूत का अस्थूल तू किवें सूक्ष्म होवेगा, बस इहो गल समझा दे। मैं तेनों गुरु मनण नूं तैयार हाँ, 9 द्वारे छड्ड के 10वें द्वारे किवें जाएगा। एक ही गल है दस दे, आ सामने सब पखंड है। जे इन्हां विच सच्चाई हुंदी तो एक बंदा भी सचखंड विच ना हुंदा। ये बेचारा आप लुक दे ड्रामे 5 लाख साल के रिमांड विच हुंदा। सुरती लाओ, बाबा ओमनी प्रेजेंट है, क्योंकि जोत है, प्रकाश है, रब है। वाहिगुरू परमात्मा नाल गल करिए तो बाबे नानक दी सुनदी है। जे अखां मीट के कोई अरदास करिए तो बाबे नानक नूं सुनदी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की झूरी विच बाबा ताबिया बैठा ही रहिंदा है। सो बाबा नानक इकल्ला ही 6 अरब है, बाबे दे 6 अरब शरीर हैं। ये सूक्ष्म गल्लां हैं, शायद तैनूं समझ ना आवे, फिर भी समझण की कोशिश कर। तू भगती कर रहे, तेरी सुरत लग गई है, तेरे दर्शन होने वाले हैं। बाबे ने सचखंड तैनूं ताबिया है, तो उठ के नहीं आना। यही जोत जो धरती तो आकाश तक है ने बाबा नानक बन जाना, तैनूं दर्शन दे देना। जे अमरीका में किसी की सुरती लग गई तो पंजाब तो भज के बाबे ने अमेरिका नहीं जाना। उही जोत धरती तो आकाश वाली ने उत्थे ही गुरु नानक बन जाना तो दर्शन दे देने। संगत कई बारी सुरत लग जाती है तो देखिए तो सारे सिमरन करन वालियां कोल बाबा नानक आप सारे कोल ही बैठा है। तो ये एक हाल विच बाबे नानक दा 100 शरीर बैठा है, क्योंकि आपे सतगुरु आप हर, वो आप ही आप है, इकल्ला आप ही आप है। सिर्फ फर्क इतना है कि रब प्रकाश है, जोत है, नूर है। बाबा सूक्ष्म शरीर है पर जोत है, नूर है, प्रकाश ही नहीं, प्रकाश ही शरीर नहीं है। तो रब प्रकाश जोत दे ज्ञान इंद्रे नहीं हैं, बाबे नानक दे हन। जोत जागत जोत है, अनुभवी प्रकाश है, सब सुनती है, महसूस करती है, बख्शिश भी करती है, पर बोलती नहीं। बाबा सुन के जवाब भी दिंदा है, बोलता है। जोत भी समर्थ है, बाबा भी समर्थ है। दोवां विच ताकत दा, समर्था दा, दैवी गुणां दा, सुभाਅ दा 1% भी फर्क नहीं। तो फर्क सिर्फ फर्क है, तेरा प्रकाश है तो बाबा प्रकाश भी है, तो सूक्ष्म शरीर भी है, तो बोलता भी। बाबे नानक तो बगैर होर कोई सारी सृष्टि में रब नूं नहीं पा सकता, क्योंकि बाबा आप ही रब है। बाबे ने अमृत तैयार किया, जीव चरनी लगन आया। बाबा आप रब आप ही अमृत तैयार करता है, आप ही छकाउंदा है। अज भी अमृत तैयार बाबा करता है। 10वें पातशाह आप आउंदे हन, आप बाणियां पढ़ते हैं, आप ही सिमरन करते हैं, आप ही अमृत छकाउंदे हैं, आप ही सिर ते हथ रख के कहते हैं बोल वाहिगुरू, बोल वाहिगुरू, बोल वाहिगुरू, बोल वाहिगुरू, बोल वाहिगुरू। इन्नी बख्शिश किते है कोई कर सकता है कोई देहतारी? जो मैं देहतारी का नाम लिखदा जां सुनदा तो हसदा हाँ, की मुकाबला है? कित्थे सूर, कित्थे प्रकाश। एक सूर दूजा विकिया होया सूर, सिखां नूं अकल नहीं, आ भी नहीं सकती। देहतारी सूरां की स्टेज ते अमृतधारी अकाली बैठते हैं, मंत्री भी बैठते हैं। गुरु नानक दे मुकाबले सूर राम सिंह की चेयर स्थापित कर दी, गुरु नानक की नरादरी कर दी। मुकाबले ते गुरु मान लिया देह नूं, गंद नूं, सूर नूं। तुसीं समझे हो इन्हां ते भी गुरु नानक मेहर करेगा तो करता रहेगा। ये उसदियां नज़रां थल्ले हैं ते धर्मराज दी नज़रां थल्ले। ये तो लिखिया है कि बाबा किसी का सक्का नहीं, बाबा सिमरन करने वाले का है। वो भी जो ज्ञाता है गुरबाणी विचारदा है। बाबे ने एक गल होर लिखी है, मैं जिसका शरीर बनाया 6 अरब दुनिया का, तो सारियां दे 10वें द्वार नूं लॉक ताला मार देता है, कोई खोलण की ताकत ही नहीं रखता, क्योंकि चाबी गुरु नानक कोल है। जे चाबी किसी होर कोल है तो दसो, आओ खोलो 10वें द्वार ते मिलाओ रब नाल। जिसका ग्रह तिन दिया ताला, कुंजी गुर सो पाई, अनेक पाव करे नहीं पावै, बिन सतगुरु सरनाई।
तो दूसरा पक्ष जीव नूं बहुत जूना विचों भटके आए हैं, तेरे नाल तेरे संस्कार भी आए हैं, बहुत गंदे हैं। तो यही संस्कार तेनों नाम नहीं जपन देंदे, बार बार कुरैत कराउंदे हैं। हुण करते गुरु नानक ने अमृत छकाउणा है, वो सब कुछ जानदा है। देखो अभागे सिखो, बहुत माड़ी किस्मत वाले हो। गुर की बाणी की कहती है, पंजां रूपां विच रब वरत रहा है, पंज रब इकट्ठे होंगे। पहला प्रकाश श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, बाबा नानक दसे पातशाहियां, पंज प्यारे, संगत। तू अमृत छकाउण लग्या पंजे रब हाजिर होंदे हन, आप ही छकाउंदे हन, तू अमृत तां छकदा नहीं। ये अमृत जीव मात्र है, सिखां लई नहीं। सारी सृष्टि दे जीवा मात्र है, केवल सिखां लई नहीं। सिख तां तू अज बनना है, अमृत छक के बाबे नानक दा वाहिगुरू दा सिख बनना है, शिष्य बन। अमृत छकण तो बगैर तू सिख नहीं। तेरा की रिश्ता है बाबे नानक नाल? तू तां हराम दा है जीव, तू कंजरी दा पुੱਤ हराम दा है। तेरे प्यो दा नां ही कोई नहीं। अगे चल पता लगेगा तेनों। जो धर्मराज ने पूछा किस दा पुत्र है, उदों तू शरीर नहीं, शरीर तेनों माँ प्यो तो मिले है। बाबा दा जीव की गल कर रहा है। अगे जीव नूं पूछया जाना है किस दा पुत्र है, जीव ने की जवाब देना है? जमदूत जो फड़ के लै गया बोलेगा महाराज एक कंजरी दा पुत्र हराम दा है। देख मूर्खा, तू पंजे रब्बां कोलों अमृत छकण नूं तैयार नहीं। आप सारे अमृत छकाउण आउंदे हन, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में छकाउंदे हन, तू अमृत नहीं छकदा। देह तारी सूर कोलों गूं खाण नूं तैयार है, अमृत नहीं छकना, गूं खाना है। यही हन संस्कार, यही है मन जो तेरे काबू तो बाहर है, जो तेनों ठीक रस्ते तो रोकदा है। जे तू अमृत छक लिया तो नाम नहीं जपन देगा, जे नाम जपेगा टिकन नहीं देगा, तेनों पटकाई जाएगा, तू हार जाएगा। यही नहीं हारेगा, तेनों हरा देगा। यह है मन। हुण अमृत छकाउण की रस्म शुरू हुई। 10वें पातशाह ने खंडा फड़िया, पाठ शुरू किया। जीव सारे खड़े देख रहे हैं। अखां की नज़र पवित्र हो रही है, कंनां नाल पाठ सुनिया जा रहा है, कन्न पवित्र हो रहे हैं, जुबान पवित्र हो रही है, नाल नाल अंदर बाणी पढ़ी जा रहे हैं, वाहिगुरू वाहिगुरू हो रहा है। गुरु साहब ने बाटा तैयार किया। असीं सारिਆਂ ने नाल नाल वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू, पंजे वाहिगुरू हाजिर नाजर। पहला चोला तैनूं पीण नूं कहा 5 वारी, जीव लई तो शरीर लई नहीं। बोल वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो तेरे अंदरले संस्कार खत्म हो गए। तो तेरे सिर ते हथ रखिया, दूआ चूला तेरी अखां च पाया, अखां तेरियां पवित्र हो गईयां। तीसरा चूला तेरे दसम द्वार च पाया, तेरे सिर ते हथ रखिया। समर्थ गुरु सिर हथ धरियो, गुर की इन्नी किरपा हर नाम दियो। बोल वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। तेनों नाम की दात दिती ते अपना पुत्र बना लिया। वाहिगुरू वाहिगुरू जपो। जिन्ना मर्जी है जोर ला लै, कोई बंदा दसम द्वार नहीं पहुँच सकता। ये सारी गुरु पातशाह की मेहर है। गुरु मेरे संग सदा है नाले। बस गुरु करता, गुरु जोत, गुरु हर वेले साडी संभाल करता है, नाम जपाउंदा है, सुरती लवाउंदा है। 9 द्वारे आप ही पार कर रहे हैं, कराउंदा है। दसम द्वार पहुँचाउंदा है, प्रकाश हो जाता है, नूर ही नूर। लाइक सनराइज बिफोर, लाइक बिफोर सनराइज, लाइट सुनहरी लालो लाल। तो शरीर निरोल माया के 3 गुणों का पुतला है। चौथे पद में सहज है। चौथा पद कित्थे है? सूक्ष्म होने करके कोई जानता ही नहीं। तो अंदरला गुरु अमृत छकण नाल बदल जाता है। 15-20 साल बाद सहज आ जाता है। वो अंदरला गुरु अपने आप ही सहज वल तुरया जाता है, मोह छड्डी जाता है, विकार खत्म करी जाता है, लोभ त्याग दिंदा है, होमे चरण धूड़ नाल मर जाती है, निरोल रब बन जाता है, गुरु नानक बन जाता है। सचखंड वसे निरंकार, जीव निरंकार ही बन जाता है, पहुँच गया सचखंड। तेनों कौन ले जाएगा सचखंड? किसी को राह ही नहीं पता कित्थे है, कोई नहीं जानता, ना ही जान सकता है। हुण बाबा नानक, करता नानक, वाहिगुरू नानक, जोत नानक, प्रकाश नानक, नूर नानक आख रहा है। दुनिया मैं बनाई है, इंसानियत आने तो बाद मैं अमृत की दात दिंदा। जे अमृत छक के भी तुसीं इंसानियत तो गिर गए तो मन ने ढा लेना है, तो मेरी बख्शिश नहीं रहेगी। याद रख, इंसानियत ही शुरू होती है। ये 4 कुरैता ना करी, इन्हां तो बगैर इंसानियत नहीं आनी। मैं अमृत की दात नहीं देनी, तेरा लगा ताला नहीं खुलना। शरीर तक ही सीमित रहेगा। शरीर काम तो बने है, काम में ही गल सड़ जाएगा। गूँ का कीड़ा गूँ में ही मस्त रहिंदा है। मैनू रब हुंदा होया भी नहीं जान सकेगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। जमदूत सिर ते खड़े रहंदे हन।
हमेशा रहणगे, जन्म तो मरण तक रहणगे। तो सचखंड पहुंचण की खेड शब्द देखो की कहता हम सानू। तै पावक सिंध धूप नहीं छैया, उत्थे पानी नहीं, कोई समुंदर नहीं, धुप नहीं, छां नहीं। तै उत्पत परलो नाही, धरती ते बंदा जमदा मरदा है, जम गया ते मर गया। उत्थे जमन मरण नहीं है, उत्थे कोई पैदा नहीं हुंदा। उत्पत परलो नहीं, उत्थे ना कोई मरदा है ना कोई जमदा है। ये बड़ा फर्क है सचखंड दा ते धरती दा, बहुत फर्क है। जीवन मृत ना दुख सुख व्यापै, सुन समाद दो तै नाही। उत्थे जीवन मरण नहीं है, जीवन मरण नहीं है, दुख सुख नहीं है। सुन समाद, ईर्खा नहीं, दो ईर्खा नहीं है, दो तै नाही। सहज की अकथ कथा है निरारी, सुभाव दा बदल जाना, मन दा टिक जाना, आत्मक अडोलता आ जानी, रब वर्गे बन जाना सहज। हर चौथड़ी लाभ मन सहज भया। सहज की अकथ कथा है निरारी, बड़ी निराली है कथा। की दसा तुल नहीं चढ़ै, तोली नहीं जा सकती। मैं तुहानू तोल के दस दियां, जाए न मुकाती, मुकदी नहीं। हल्की लगे न भारी, मैं किहदे वटे दसा इन्नी हल्की है, तो किनू तोल के दसा इन्नी भारी है। वो हल्की नहीं लगती, भारी नहीं, कोई ऐसा पक्ष नहीं हैगा। सचखंड की गल है ना, भावें सालां बद्धी बैठे रहो, जिवें बाबा खरबां साल तो बैठा है। मैं जो छोटा हुंदा सी, जो मैनू समझ आई तो मैं इहो गल कही कि गुरु साहब जी तुसीं थक नहीं जाते। पता लगा शरीर थकदा है, आत्मा नहीं थकदी। फिर चौर करी जा रहे हो खरबा सालों तो, असीं 10 मिनट करिए साडा हाथ थक जाता है। शरीर थकदा है, आत्मा नहीं थकदी। आत्मा भी साडा शरीर है, हल्की लगे ना भारी। अर्ध उर्द दो तै नाही, सैकंड दर्जा, तीजा दर्जा, दोम सेम। उत्थे दो, उत्थे कोई नफरत नहीं, ईर्खा नहीं, द्वैक नहीं। रात दिन तै नाही, सूरज ते चंद्रमा तो उत्ते दी गल है। देख लो उत्थे ना रात है ना दिन है, रात दिन है नहीं उत्थे, रात दिन है नहीं। जल नहीं, जल है नहीं। पवन पावक फुन नाही, ये 5 भूत, हवा ते अग भी है नहीं। 5 भूत तो शरीर बने ना, शरीर की खेड उत्थे नहीं है, शरीर उत्थे है नहीं। जल नहीं, पवन पावक फुन नाही, सतगुरु तहां समाही। यह गल बड़ी सोचण वाली है। शब्द कबीर जी का, उत्थे कहंदे सचखंड, सचखंड विच सतगुरु हैगा। किहड़े सतगुरु का नाम लिया उन्होंने? तो किहड़ा स्पैशल सतगुरु सी? सतगुरु तो इक्को ही है, सतगुरु नानक देव है परमेश्वर सोई। सतगुरु होर किहड़ा आ गया? सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी है। क्यों? एक बाणी एक गुर दा सिद्धांत है साडा। कबीर जी कह रहे हैं सतगुरु तहां समाई, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी उत्थे हैगे ने, गुरु नानक पातशाह उत्थे हैगे ने, जो सारी सृष्टि नूं चला रहे हैं। पर वे सानू गल किसी ने सतगुरु किहड़े सतगुरु का नाम लिया? कबीर जी ने किहड़े सतगुरु का नाम लिया? तो सतगुरु तहां समाही, अगम अगोचर रहे निरंतर। रब अगम है, पहुंच बंदा कोई पहुंच नहीं सकता। अगोचर है, ज्ञान इंद्रियां दी पहुंच तो परे है, अगोचर। उत्थे कहंदे एक रस वस रहे। अगम अगोचर रहे निरंतर, जोत है, प्रकाश, ठीक है। लख लख शख्सी रपान है, लखां लखां सूरजां ते चंद्रमा जिन्ना प्रकाश है वो जोत का, पर सूक्ष्म होने करके दिसदा नहीं। कहते जिहड़ा अगम ते अगोचर वाहिगुरू है उत्थे एक रस वस रहे। अगम अगोचर रहे निरंतर, निरंतर एक रस वस रहे। प्रकाश ही सचखंड विच ओहदा है। और किरपा ते लईए, गुरु की कृपा नाल मिल सकदा।
कहो कबीर बल जाऊं गुर अपने, सत्संगत मिल रही है। गुर किरपा ते गुरु नानक दी किरपा नाल, बख्शिश नाल, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की किरपा नाल, बख्शिश नाल आपां सचखंड पहुंच सकते हैं। लईए हुण भी तुसीं लै सकदे हो। कहो कबीर बल जाऊं गुरु अपने, मैं अपने गुरु नानक तो सदके जाना, जिन्हें मैनू ये सारी खेड दिखाई है। कहना सत्संगत मिल रही है, सारे इकट्ठे होके आपां उस वाहिगुरू दा जाप करया करिए, सिमरन करया करिए, सत्संगत विच मिल के बैठिए ते आपां उहदा वाहिगुरू दा जाप करिए, ते सानू भी वाहिगुरू दे दर्शन हो सकते हैं। सानू भी वाहिगुरू दे दर्शन हो सकते हैं। बड़ियां गल्लां गुरु ਸਾਹਿਬ ने तो बड़े पेवकड़े दिन 4 है, 4 दिन की खेड ही आ, अगे अरबां साल की खेड है, अगे सदीवी जीवन है, इत्थे टैंपरेरी जीवन है। सौरड़े जाना, सौरे चले जाना, अंधा लोक न जानी मूर्खे आना। बेवकूफ बंदे अन्ने, उन्होंने पता नहीं इयान बने अमान बने पे आ मूर्ख। कहो डडिया बाधे धन खड़ी, डडिया हुंदी छोटी धोती। यूपी बिहार विच औरत काम घर दा कामकार करन लगिया छोटी धोती बन लैंदे आ, मतलब घर दे मोह विच ही अजे अजे सारे परिवार दे मोह विच ही है। मैं तो पुत्र ब्याहने आ, पोतरे देखने आ, बाहू घर आए, मुकलाऊ आए, जमदूत परौने आ गए आ ते मुकलावा लैन आ गए आ, मुकलावा लैन आ गए। ओ जो दिसे खूड़ी, बड़ी सोहनी खूह, कौन लाज बहारी, कौन दिसदे सोहने जगत दे मोह विच फसिया पिया, कौन लाज बहारी, किहड़ा उहदे चों लाज बहा के पानी कढ रहा, किन्ना संसार दा मोह है उहदे विच लगा पिया। लाज घड़ी स्यों टूट पड़ी, लज भी टुट गई, घड़ी दे समेत टुट गई। उठ चली पनिहारी, वो जिहड़ी संसार नाल बड़ा मोह करदी सी, परिवार नाल बड़ा मोह करदी सी, उठ पई, उठ गई, चली गई। जमदूत आ गया ना, साहिब होए दयाल, किरपा करे तो अपना कारज सवारै। वाहिगुरू मेहर करे, मालक की किरपा करे, दयाल होए ते अपना कारज सवारे। तां सुहागण जाणीए गुरु शब्द विचारै, गुरु बाणी दी विचार करे तो सुहागण रब दी वोटी बनदी आ, ते रब दी वोटी बन के रब नाल लावां लैणियां। तो गुरु साहब कहंदे बाणी विचारनी शुरू कर, तू रब दी वोटी बन जाएगी, तेरा ब्याह हो जाएगा। किरत की बांधी सब फिरै, देखो विचारी, सारे पिछले कीते कर्मां नाल बनियां होईयां, बन्ने पैन। देखो विचारी, सब भटक रही है, सब फिरे, देखो इनू, इसनू क्या आखिए, क्या करे विचारी, इनू की आखने रब दे मिलाप दी की गल करिए, पिछले भैड़े कर्मां करन करके ही ते फसी पई है, इनू की कहना है। भाई निरासी उठ चली, चित बंद न धीरा, बस भाई निरासी आशा तो बगैर उठ चली, मर गई, चित बंद न धीरा, ते हुण कोई धीरे जी नहीं दिंदा। हर की चरनी लाग रहो, भज सरन कबीरा, अजे भी वाहिगुरू दे चरनां विच लग जा, अमृत छक लै ते वाहिगुरू दा सिमरन कर। हर की चरनी लाग रहो, भज ते उहदे चरनां नाल जुड़ के ही वाहिगुरू 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 जप, वाहिगुरू जप लै। सो स्थान बतावो मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता, यह भी सचखंड है। भगत रविदास जी ने पूछ लेने। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख दो नहीं तै ठाऊं, उथे कोई गम नहीं, फिक्र नहीं, दुख नहीं, चिंता नहीं, ना तस्वीर खराज न माल, खौफ न खता तरस जिवाल, कोई उथे है नहीं, टैक्स नहीं, टैक्स अगराउन वाला कोई नहीं, कोई फिक्र ही नहीं हैगा, खौफ न खता, कोई डर नहीं, तरस जिवाल, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं हैगा, कोई उथे टैक्स नहीं लैन वाला, कोई डर नहीं हैगा, कोई पाप नहीं हैगा, खता। मैं खूब वतन गह पाई, किड्डी मेहर हुई कि मैं एक नवा शहर लभ लिया।
वतन गह पाई। ऊहां खैर सदा मेरे भाई, ते उत्थे हमेशा सुख ही सुख है, हमेशा उत्थे सुख ही सुख है। दायम कायम सदा पातशाही, असी कहने सचखंड ही है नहीं। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी कहते दायम कायम, हमेशा कायम, हमेशा रहन वाली। सदा पातशाही कायम है, हमेशा दायम, बिल्कुल प्रतख है, सदीवी है। उत्थे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश है। दसे पातशाहियां हाजिर ने, दोम न सेम एक स्यों आही, दूजा ते तीजा दर्जा नहीं है। एक वाहिगुरु की गल की जाती उत्थे, एक वाहिगुरु एक स्यों, सारे एक बराबर ने। आबादान सदा मशहूर, आबादी वाला शहर है तो बड़ा मशहूर है। असी कहने है ही नहीं, सानू नहीं पता लगा, असी कहने है, असी भोग ही पा लेने, है नहीं। आबादान सदा मशहूर, आबादी वाला शहर है, बड़ा मशहूर है, हमेशा मशहूर है, तो हमेशा ही रहना है। ऊहां गनी बसे मामूर, बस उत्थे बड़े अमीर ते धनाड़ बंदे रहिंदे आ, साडे वर्गे सैल्फिश कमीने नहीं रहिंदे। बहुत अमीर ते जिन्हां ने धन नूं वंडिया, दौलत नूं वंडिया, खावो खर्चो रल मिल भाई, टोट रहे आवे बद्धो जाई। जिन्हां ने प्रचार किया, जिन्हां ने दौलत नूं वंड दिता, शब्द नूं वंड दिता, नाम नूं वंड दिता, वो अमीर बंदे वसदे आ। तुहाडे वर्गे कंजूस घर बहन वाले परिवार तक सीमित मक्खी चूस नहीं रहिंदे उत्थे। त्यों त्यों सैल करे ज्यों भावै, जिवें जिवें उहनूं चंगा लगदा है उदां उदां वो सैल सपट्टा करदा है। त्यों त्यों सैल करे, उत्थे घूम फिर सकते हैं बाहर, जिवें उहनूं चंगा लगदा उदां कर सकदा है। महरम महल ना को अटकावै, ते उहनूं उत्थे महल जाण नूं कोई उत्थे रोक नहीं, जदों मर्जी आ जा सकते हैं, आ जा सकते हैं। महल ना को अटकावे, उत्थे कोई रोक नहीं हैगी कि तुहानूं कोई रुकावट पाएगा, उत्थे कोई रुकावट नहीं हैगी। कह रविदास खलास चमारा, रविदास कह चमार, देखो अपने आप नूं चमार कह लो, खलास खलासी, नरकां तो बचाओ, उत्थे ही है। जो हम शहरी सो मीत हमारा, जेड़ा सचखंड पहुंच गया, दसमद्वारी हो गया, वो मेरा असल दोस्त है। मैं भावें चमार हाँ, उत्थे नाले आपे ही तो कहंदे ने दोम न सेम, उत्थे पंडितां वाली जात पत नहीं हैगी। दोम न सेम एक सो आही, कह रविदास खलास चमारा। जो हम शहरी सो मीत हमारा, जेड़ा उत्थे पहुंच गया, जो हम शहरी, मेरे शहर पहुंच गया, जेड़ा शहर, जेड़े शहर च मैं गया बेगमपुरे विच, सचखंड विच, अगर उत्थे कोई पहुंच गया तो वो मेरा दोस्त है। बाकी तो सारे निकम्मे जेड़े नौ द्वारियां च घूमी जाते हैं, वो तो निकम्मे। तो नौ द्वारे शरीर एक ठग ने, आपां इन्हां तो बच के जाना है। ये ना कहिए कम से कम गुरु साहब की हजूरी च बह के सचखंड ही है नहीं, तैनूं नहीं पता लगा तो कम से कम बाणी नूं उल्टन की कोशिश तो ना कर। तो गुरु साहब बख्शिश करन, आपां इन्हां प्रचारकां तो बचना है जिहड़े गुरु साहब के बरखलाफ बोलते हैं। तुसीं आप थोड़ा जिहा ख्याल रखो, वाहिगुरू की बख्शिश लो, गुरु साहब जी मेहर करन। सचखंड पहुंचना ही, मनुखा जन्म लैके सचखंड पहुंचना ही पहुंचना है, वाहिगुरू की बख्शिश नाल पहुंचना है। गुरु साहब बख्शिश करन, आपां बख्शिश लैनी, सुरती लाउणी, बस सुरती ला के नौ द्वारियां नूं छड्डदे होए, भुलदे होए, सुरती विच अरदासां करदे होए, वाहिगुरू कोल बख्शिश लैंदे होए, आपां उस वाहिगुरू कोल पहुंचना ही पहुंचना है। जो हम शहरी सुमीत, उस शहर में जाना जिथे रविदास जी पहुंचे, भगत जी पहुंचे, आपां उत्थे जाना है, गुरु की बख्शिश नाल जाना है। भुल चुक दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ